everyone. Bhagini, am I audible? Okay. Gururev gatirgurumev bhaje gurunaiv sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guro bravimi samskritam vacha dhyayami samskritam hrida kurve sevancha kayena वंदे संस्कृतमातरं यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः. So I welcome one and all to today's session, that is Sanskrit story time, Vetala Panchavimshati. It's an Hindi explanation. The course starts from today. It is going to be every Tuesday and Thursday, 7:30 to 8:30 p.m. session. So I welcome one and all once again. So I just wanted to introduce our teacher of this course, Dr. Leena Doshi. Leena Doshi Bhagini has an experience in teaching and learning Sanskrit for over 17 years. And also she has experience of 16 years for teaching students Sanskrit 8th to 12th grade from Maharashtra State Board. So she holds PhD from Mumbai University, specializing in Jainism and Jainendra Vyakaran and the philosophical works of Acharya Devanandi Pujapada. And she's a visiting faculty for the Sanskrit department in Mumbai University. So coming to next, it is like how to join the class. Usually, I think already you people know that, but still, let me share my screen and show how you can join the class, as well as where exactly you have to go to search for contents. So usually what will happen, you will go to our website. So you will click on, if you're already logged in, it will be shown here as My Learning. If you are not logged in, it will be shown here as Login. So you will log in. After that, it will show as My Learning. If you click on My Learning, it will redirect to your student dashboard. So once you are inside this dashboard, so here the comes, so for new courses or going to same dashboard, I mean same website, explore courses, if you click, you will go to our website back. If you want to, check the contents of this course, you have to click on, like already you have enrolled. So the course will be visible here. So if you click on this, it will take you to the content page. So here are the contents, like the contents will be coming here, the audio, video, and the PDF, whatever the provided in the classes, that will be uploaded here, and you will get the access from here. So if you want to go to back, go to dashboard, click on dashboard, and again you will come to your dashboard, main session. So whenever the classes, if you want to join any class from Vyoma, so you have to go to here, that clicking on this. So see here now the Sanskrit story time. Once teacher starts the class, it will be like blue, in blue, and you are clicking here and joining. If you are already in this page and you are waiting for the class and it is not at all highlighted for that particular time, you have to refresh here, refresh your page, so that it will, again pop up like in blue, it will come and you can join and you can attend the session. So coming to other things, it is under exams, the main exams. If anything is there, it will be visible here. Through mail, all the details will be forwarded. So under exams, if you go, you can attend the exams here.
And certificates also, once the certificate issue, the mail if you receive, you can go to under certificates, you can find your certificates here and you can download. These are the main thing. So dashboard again. So this is the main dashboard. So the next part. Next part is, so webinar guidelines. So if you say like, can I use my phone or laptop, whatever it is, like PC, Android, iOS devices, anything you can join. In Zoom, you will be having raise hand option, as you all know that, and Q&A, you can raise your questions here. Mute and unmute option will be there. So for better audio and video, audio quality, you can use your headphones. So this is the good news, like exciting news. That is, we are having our mobile app. You can easily take classes from anywhere, anytime. So if you once you download the app, you will be accessing like in our website, how we have shown you now, the same thing. You can just download and you can use it. So it will be very useful. So once teachers start the class, I will be sharing the links to in chat. You can copy it and you can download. It is for, one is for, it's a beta version. And for Androids and iOS devices, here are the, even scanner is also provided. If you want, you can scan. I can leave for 2 seconds. So it is for iOS and Android. It is here. So that link will be shared through chat. So the next thing is, join our WhatsApp group. So Vetala Vimshati course, we have created one WhatsApp group. So the link, even for this link also, I'm going to share in chat. You can join through that link. Thank you so much for joining. I'll welcome once again Leena Bhagini to this class. And Bhagini, you can go ahead. Thank you. Dhanyavad. धन्यवादः. नमो नमः सर्वेभ्यः. श्री गुरवे नमः. ओके, आप सभी का इस कोर्स में हार्दिक स्वागत है. सो ये कोर्स पूरी तरह इंटरैक्टिव होगा, लेकिन आज के सेशन में कुछ चीजें ऐसे बताई जाएगी जो आपको आगे जाके उसकी मदद हो सकती है. तो ऐसे कहा जाता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम. मतलब क्या है? काव्य, शास्त्र और विनोद, इन 3 चीजों में बुद्धिमान मनुष्य का समय व्यतीत होता है. सो काव्य मतलब क्या है? सो काव्य संस्कृत में नाटक या रूपक के सब प्रकार, या फिर कथा साहित्य हो, या फिर काव्य हो मेघदूत जैसा, ऐसी कोई भी चीज हो जो साहित्य है, उसको काव्य ही कहा जाता है. सो कोई भी काव्य के प्रति हम अगर सजग होकर, मतलब काव्य सुनने में, सुनाने में, पढ़ने में, उसका अध्ययन करने में, रस ग्रहण करने में अगर हमारा समय व्यतीत होता है तो बहुत ही अच्छा है. दूसरा है शास्त्र. मतलब जो भी शास्त्र का अध्ययन हमने किया है, वो शास्त्र हम कथा माध्यम में या फिर काव्य में उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर शास्त्र का ज्ञान ले सकते हैं. अभी विनोद. विनोद मतलब सामान्यतः हम जानते हैं कि विनोद मतलब मनोरंजन. लेकिन क्या विनोद का अर्थ सिर्फ वही है? नहीं. विनोद मतलब जिज्ञासा उत्पन्न रखना, मतलब जिज्ञासा मन में जागृत रखना, श्रम का अपनयन करना, प्रसन्न करना, ऐसा भी विनोद शब्द का अर्थ आता है. सो मैं आप सबका
आभार व्यक्त करती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप सब काव्य के प्रति सजग हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और आपकी जिज्ञासा आपने कायम रखी है। तो हम वेताल पंचविंशति जैसे कथा साहित्य पढ़ के हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। एक तो है आत्मसंतोष, आनंद की अनुभूति होती है। संस्कृत का शब्द ज्ञान और अभिव्यक्ति, इसमें सुधार आता है। कला और साहित्य के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है और हमारी विचार शक्ति और तर्क शक्ति भी, उसमें भी वृद्धि होती है। सो हमने देखा कि साहित्य, काव्य, ये हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है साहित्य? साहित्य किसे कहा जाता है? जिसमें शब्द और अर्थ दोनों एक साथ सहित भाव से है, वो साहित्य होता है। और जब भी हमारे मन में प्रश्न आता है कि साहित्य के या काव्य के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि साहित्य के जो प्रकार है वो पहले निर्मित नहीं हुए हैं, बल्कि साहित्य पहले निर्माण हुआ और उसको आगे रख के काव्य शास्त्रज्ञ जो है उन्होंने उसके ऊपर से काव्य के प्रकार, काव्य में क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर वो महाकाव्य है तो उसका क्या लक्षण है, कथा साहित्य है तो उसका क्या लक्षण है, ये सब उन्होंने लिखा है। अभी अगर हम देखना चाहेंगे कि काव्य के कितने प्रकार है, तो उसको अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीकों से हम लोग उसको विभाजन उसका कर सकते हैं। तो प्रथम तो है दृश्य काव्य, काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य मतलब जो हम आंखों से देख सकते हैं वो दृश्य काव्य है। जैसे कि रूपक के 10 प्रकार है, जिसमें एक प्रकार है नाटक, सो ये दृश्य काव्य है। लेकिन श्रव्य काव्य जो होता है उसमें आगे और 2 प्रकार से विभाजन हो सकता है। श्रव्य काव्य है जो हम सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इसके क्या प्रकार है? तो महाकाव्य और लघु काव्य। महाकाव्य में आगे जाकर फिर से 2 प्रकार हम कर सकते हैं, एक प्राचीन महाकाव्य, एक अभिजात या अर्वाचीन महाकाव्य। तो प्राचीन महाकाव्य में है रामायण, महाभारत, सभी जानते हैं। और उसके बाद आते हैं पंच महाकाव्य, जो कुमार संभव, रघुवंश, नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, ये सब जो है वो पंच महाकाव्य में आते हैं। और जो महाकाव्य के बाद दूसरा जो विभाजन किया है वो है लघु काव्य। तो लघु काव्य को ही खंड काव्य भी कहा जाता है। मेघदूत या फिर सुभाषित जो है तो वो लघु काव्य ही है, उसको मुक्तक प्रकार का लघु काव्य कहा जाता है। या फिर शतक त्रयी है, जैसे नीति शतक है, वैराग्य शतक है, वो भी सब लघु काव्य में आएंगे। अभी ये जो श्रव्य काव्य है या कोई भी काव्य के शैली के हिसाब से, मतलब जो शैली उन्होंने अपनाई है उस हिसाब से भी आगे हमारे अलग प्रकार से हम उसको विभाजन कर सकते हैं। जैसे कि गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। जो लघु काव्य, महाकाव्य अभी तक हमने देखे, रामायण, महाभारत, कुमार संभव, लघु काव्य में जो मेघदूत है, तो ये सब जो है वो श्लोक स्वरूप में है, इसलिए वो पद्य काव्य है, उसमें पद्य है। दूसरा होता है गद्य काव्य। गद्य काव्य जो होता है वो वाक्य स्वरूप में होता है। सो वो भी हम लोग अलग तरीके से उसका एक अध्ययन कर सकते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो है चंपू काव्य। चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों भी उसमें होते हैं। अभी हमारा कथा साहित्य जो है उसको हम कहाँ डालें? या पद्य काव्य या गद्य काव्य या चंपू काव्य? सो जो गद्य काव्य है उसमें कथा साहित्य आएगा। तो क्या कथा साहित्य सिर्फ वाक्य स्वरूप में होता है
जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कथा साहित्य में श्लोक नहीं होते हैं? ऐसा भी नहीं है। अगर हम पंचतंत्र देखें तो उसमें सुभाषित के तौर पे अनेक सुभाषित या श्लोक आते हैं जिसमें नीति बताई जाती है, वो प्रायः सुभाषित में आते हैं पंचतंत्र में। लेकिन अभी जो वेताल पंचविंशति की मूल कथा है, बृहत कथा या फिर कथा सरित सागर, ये जो कथाएं हैं वो श्लोक रूप में है, लेकिन अत्यंत सुगम श्लोकों के फॉर्म में ये कथाएं बताई गई है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कथाएं सिर्फ गद्य में आती है, पद्य में बिल्कुल नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कथाओं में हम लोग किसी अद्भुत जगत में प्रवेश करते हैं जहां हमें बहुत सारे चीजें नई तरीके से मालूम होती है। तो चंपू काव्य में क्या है? चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों भी होते हैं। मतलब जहां जहां भावात्मक वर्णन है वहां वहां पद्य द्वारा वर्णन किया जाता है, और जहां जहां वर्णनात्मक है, किसी चीज का वर्णन है, पर्वत है, नदी है, उसका वर्णन करना है, तो वो गद्य में वर्णन करते हैं। सो चंपू काव्य और पंचतंत्र, इसमें क्या भेद है? चंपू काव्य में भी गद्य पद्य है, पंचतंत्र जैसे कथा साहित्य में भी गद्य पद्य है। तो क्या इसमें कुछ अंतर है? जी हाँ। जो पंचतंत्र है उसको चंपू काव्य नहीं कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआत में, मध्य में और अंत में एक ही कथानक, एक ही नायक के नायक नहीं है, उसमें अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन चंपू काव्य जो होता है वो एक ही नायक या नायिका के ऊपर होता है। अभी चंपू काव्य का उदाहरण है नल चंपू। इसमें नल का कथानक पूरा चंपू काव्य में दिखाई देता है। सो ये हो गया हमारा आज की प्रस्तावना। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो वेताल पंचविंशति है उसको सिखाने को हम अभी से शुरुआत करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको अगर दिखता है तो प्लीज बता दीजिए। Yes, Bhagini, you can able ओके to see. ओके। ओके, हम आगे जाके क्या सीखने वाले हैं? तो साहित्य प्रकार जो कथा है उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे। कथा साहित्य का उद्गम और विकास कैसे हुआ है, उसका उद्गम कहाँ दिखाई देता है, उसका विकास कैसे हुआ है, ये देखेंगे। ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाभारत, रामायण, जातक कथा, जैन कथा और पतंजलि ने कहा कुछ कहा है क्या अपने महाभाष्य में, ये भी देखेंगे। और उसके आगे हम कथा शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, कथा शब्द के अर्थ क्या है, कथा श्रवण से क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, क्या परिणाम होते हैं उसके, कथा का उद्देश्य क्या है, कथा का उपयोजन किस प्रकार से किया जाता है, कथा के क्या प्रकार है, उसमें दो प्रकार कहे जाते हैं, उपदेशात्मक कथा और कल्पित कथा, उसकी चर्चा करेंगे। कथा और आख्यायिका, इसमें क्या भेद है और क्या साम्य है, क्या समानता दिखाई देती है, इसके ऊपर चर्चा होगी। और इस सब चर्चा के बाद वेताल पंचविंशति का जो हमारा टेक्स्ट है, उसकी जो संहिता है, उसका परिचय करा जाएगा। और उस टेक्स्ट का, उस संहिता का प्रतिपद अध्ययन आगे से होगा। सो कथा साहित्य का उद्गम जो है हमें कहाँ दिखाई देता है? जैसे हमने कहा कि ऋग्वेद में जहां जहां संवादात्मक कथाएं आती है, संवादात्मक सूक्त आते हैं, वहां वहां हमें कथा का बीज दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर सरमापणि संवाद जो है, तो इंद्र जो है उसने
उसकी जो गोधन है वो पणी नामक राक्षसों ने उसको लेके जाके अपने अपने यहाँ उन्होंने छुपाया है। तो इंद्र अपने और सेवकों को भेजता है गोधन को ढूंढने के लिए, लेकिन जो पणी है वो उनको ब्राइब करके, उनको कुछ उपहार देके उनको उस गुहा तक नहीं पहुंचने देते हैं। फिर इंद्र ने अपनी सरमा नामक एक शूनक को, मतलब कुत्ती को वहां भेज दिया। रास्ते में आए हुए सभी कठिनाइयों को पार करते हुए वो वहां पहुंच जाती है, और वहां पणियों ने जो भी उपहार उसको दिए हैं वो स्वीकार न करते हुए वो वहां तक पहुंच जाती है, और कौन सी गुहा में गोधन को रखा है वो ढूंढ लेती है। तो ये जो कथा के बीज है, आगे जाके हमें कई कई कथाओं में, एक उदाहरण के तौर में मैंने सरमापणी संवाद लिया है, लेकिन ऐसे संवाद ऋग्वेद में या वेदों में दिखाई देते हैं। उसके आगे आता है ब्राह्मण कथा ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें उपदेशात्मक पद्य कथाएं आती है। सो उदाहरण के तौर पर ऐतरेय ब्राह्मण में शुनश्शेप कथा आती है। तो शुनश्शेप कथा क्या है कि अजिगर्द नामक ऋषि ने अपने पुत्र को 100 धेनु के बदले में उसको बेच दिया है, और उसको वरुण के लिए यज्ञ में बांधा जाता है। तो शुनश्शेप जो है वो अजिगर्त का मध्यम पुत्र है। अजिगर्त को जब अपने पुत्र का दान करने को बोला गया तो उसने बोला कि मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र है वो मुझे प्रिय है। उसकी पत्नी ने बोला मेरा कनिष्ठ पुत्र मुझे प्रिय है, लेकिन जो मध्यमा पुत्र है जिसका नाम है शुनश्शेप वो किसी को भी प्रिय नहीं है, इसलिए उसको बेचा जाता है। तो इस कथा का बीज हमें भास के मध्यम व्यायोग में दिखाई पड़ता है। वैसे ही आगे जाके हमें अगर उपनिषद के बारे में सोचना है तो उपनिषद में नचिकेता उपाख्यान आता है। उदाहरण के तौर में एक एक कथाएं मैं ले रही हूँ। सो ये नचिकेता आख्यान का क्या है? सो नचिकेता जो है अपने पिता को पूछता है कि आपके सबसे प्यारे, मतलब मुझे आप किसको दान दीजिएगा? सो गुस्सा होकर पिता बोलते हैं मैं आपको यमदेव को दान करता हूँ। सो यमलोक में नचिकेता जाकर बैठ जाते हैं। यमदेव वहां नहीं है, तो 3 दिन भूखे प्यासे वो यमदेव की राह देखते वहां बैठते हैं। वहां यमदेव के आने के बाद यमदेव उनसे प्रसन्न होते हैं। एक छोटा सा बालक भूखा प्यासा यहाँ बैठा है, 3 दिन से यहाँ बैठा है, इसलिए वो उन्हें 3 वर मांगने कहते हैं। पहले 2 वर जो है वो सामान्य है, इसलिए यमदेव उनको वो प्रदान करते हैं। लेकिन तीसरा जो वर है नचिकेता ने मांगा वो है आत्मा के बारे में ज्यादा ज्ञान उन्होंने मांगा है। तो वहां पे यमदेव उनको परावृत्त करते हैं और बोलते हैं कि ये तो आप बहुत छोटे हैं, आपको नहीं दे सकते। सो ये सब जो चर्चात्मक कहानियां हैं इसको हम ऋग्वेद में, ब्राह्मण कथा में, उपनिषद में देखते हैं। तो ऐसे कथाओं का उद्गम और विकास हम इन सब में, वैदिक जो परंपरा है उसमें दिखाई देता है। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। आगे महाभारत है। सो महाभारत में तो अनेकों आख्यान आते हैं, लेकिन शांति पर्व में पंचतंत्र में जो नीति परक कथाएं हैं उसके बीज वहां दिखाई देते हैं। जो राजनीति तंत्र वहां सिखाया गया है
वो हमें पंचतंत्र में मिलता है। रामायण में कथाओं के उल्लेख बहुत संक्षिप्त रूप से आते हैं। इतनी कथाएं रामायण में नहीं है जितनी कि महाभारत में। अभी आगे जाके अगर हम बौद्ध साहित्य के बारे में सोचते हैं तो बौद्ध साहित्य में जो जातक कथाएं हैं वो तो विद्वानों को आज तक विद्वानों ने उनकी सराहना की है। जातक कथाएं आज भी सभी को प्रिय है और उसमें बौद्ध के जो वचन बोले गए हैं उन सिद्धांतों को उन्होंने कहने का प्रयास किया। उसके बाद हम आते हैं जैन कथा। क्या जैन कथा भी उपलब्ध है? तो जैनों में 4 प्रकार के साहित्य है, जो है प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग और करणानुयोग। इसमें जो प्रथमानुयोग है उसमें उनमें कथाएं आती है और उन कथाओं से जैन सिद्धांतों को बताया जाता है। और उसके बाद हम अगर महाभाष्य के बारे में सोचते हैं, जो कि क्रिस्त पूर्व 200 शतक है, उसमें काक उलुकम इसका उल्लेख आता है। तो क्या है ये काकोलुकम? काक और उलुक ये पंचतंत्र का तीसरा तंत्र है, जिसमें कौवा और उलुक इनसे अनेक कथाएं कही गई है। सो प्रायः ये हो सकता है कि ये जो काक और उलुक की कथाएं थी वो लोक कथा के बारे में लोक कथा के रूप में भारत में प्रचलित ही थी। सो हम लोगों ने अभी देखा कि कथा साहित्य का उद्गम कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। और उसके आगे हम लोग देखते हैं अभी कथा की व्युत्पत्ति क्या है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगी कि कथा साहित्य में क्या अलग अलग तंत्र की योजना की गई है। जी हाँ, अलग अलग तंत्र भी भारतीय कथा साहित्य में विकसित हुए दिखाई देते हैं। मतलब क्या है, क्या हमें दिखाई देता है कथा साहित्य में? सो हम देखते हैं कि भारतीय कथा साहित्य में हमें दिखाई देता है कि अगर हम लोग अलग अलग कथाएं देखते हैं, जैसे कि शुक सप्तति, ये क्या है? शुक सप्तति ये किस स्वरूप की कथा है? तो शुक सप्तति एक शुक के मुख से, मतलब तोते के मुख से कही गई कथाएं यहाँ है। क्या है शुक सप्तति में? ऐसी 70 कथाएं हैं। सप्तति ही मतलब 70। सो एक पुरुष है, वो अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़कर यात्रा के लिए जा रहा है। जाते समय उसने अपने तोते को, मतलब शुक को घर पे रखा है और पत्नी को कहा कि ये शुक जो है तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा संरक्षण करेगा और तुम्हारा मनोरंजन भी करेगा। तो वहां पे ऐसा कहने के बाद जब पति निकल जाता है और जो पत्नी है कुछ दिनों के बाद अपना मन रिझाने के लिए वो घर से बाहर निकलती है। जब भी वो घर से बाहर निकलने का सोचती है, तभी तभी वो शुकज है, जो तोता है, वो सामने आता है और उसको एक कहानी सुनाता है, जिससे वो उस गृहपति की पत्नी का संरक्षण कर सकता है। सो हमने देखा कि शुक से कही, मतलब तोते के मुंह से कही गई कहानी। अभी हम फिर से पंचतंत्र में आते हैं। तो पंचतंत्र में क्या तंत्र अपनाया गया है? क्या उसमें एक कहानियां आती है, एक खत्म होने के बाद दूसरी कहानी आती है? बिल्कुल नहीं। उसमें एक कहानी खत्म होते होते दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होते होते तीसरी कहानी
शुरू हो जाती है। जैसे डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, इस पद्धति से वो कहानियां आती है, जिसको हम बॉक्स इन बॉक्स ऐसे कहते हैं। श्रृंखलात्मक कहानियां आती है। तो पंचतंत्र में ये तंत्र, कथा तंत्र हमने देखा। उसके बाद सिंहासन बत्तीसी है। सिंहासन बत्तीसी में क्या है? सिंहासन बत्तीसी में हमें दिखाई देता है कि जो विक्रमादित्य का सिंहासन है वो एक राजा को प्राप्त होता है, भोज राजा को प्राप्त होता है, ऐसे कहा जाता है। सो भोज राजा उस सिंहासन पे बैठने की चेष्टा करता है। जब वो बैठने का प्रयास करता है तभी वहां पे लगी हुई 32 मतलब द्वात्रिंशति ऐसी जो पुतलियां होती है, वो सब पुतलियां हंसने लगती और वो प्रश्न पूछती है, हे राजा, क्या तुम इस आसन पे, इस सिंहासन में बैठने लायक हो या नहीं? तो वो राजा विक्रमादित्य के जो गुण है, जैसे कि उसका पराक्रम है, उसकी दानवीरता है या होना है, ऐसे अनेक गुणों को आधृत करके, मतलब उसके आधार पर अलग अलग कहानियां वो पुतलियां कहती है। ऐसे सिंहासन बत्तीसी में एक अलग तंत्र हमें दिखाई देता है। और जो हमारा प्रस्तुत विषय है वो है वेताल पंचविंशति। तो ये वेताल पंचविंशति में वेताल के द्वारा कही गई 25 कहानियां आती है। प्रस्तावना स्वरूप में हमने देखा कि कथा बीज का उद्गम कहाँ और कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और फिर कथा तंत्र, ये जो है भारतीय कथा साहित्य में, उसका उद्गम और विकास कहाँ कहाँ और कैसे हुआ, एक तंत्र कैसे डेवलप हुआ, कैसे विकसित हुआ, वो भी हमने देखा। तो अभी हम आगे जाते हैं। कथा शब्द की व्युत्पत्ति और कथा शब्द का अर्थ क्या है। कथ, ये धातु मतलब मूल क्रियापद जो है, उसका अर्थ है वाक्य प्रबंधे, मतलब वाक्य प्रबंध। इस अर्थ में कथ धातु को अंग प्रत्यय और उसके आगे टाप, ये स्त्री प्रत्यय लगाकर कथा इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि कथा मतलब क्या है। कहना, बयां करना, व्याख्यान करना, ये कथा शब्द के अर्थ है। कथा मतलब क्या है? कुछ बयां करना, कुछ बोलना, कुछ बताना, कुछ कहना, कुछ व्याख्यान करना, यह कथा का अर्थ हुआ। अभी अमर सिंह ने प्रबंध कल्पना कथा ऐसे कहा है। मतलब क्या है प्रबंध कल्पना? पहले हम देखते हैं कि प्रबंध मतलब क्या है। प्रबंध मतलब अभिधेय, मतलब जो बताने का है, बताने का विषय है, उसके विषय के बीज के ऊपर कल्पना करके उसके ऊपर बड़ा एक प्रबंध लिखना, मतलब कथा है। प्रबंध कल्पना कथा, ये अमर कोशकार अमर सिंह ने बताया। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रबंधेन कल्पना, प्रबंधस्य कल्पना, प्रबंधस्य मतलब अभिधेयस्य कल्पना इति कथा। मतलब प्रबंध के स्वरूप से कल्पना का विस्तार करना कथा होती है। जो बताना है वो कल्पना स्वरूप उसका व्याख्यान करना मतलब कथा है। और आपटे कोश में लिखा गया है कि गद्यमयी रचना का एक भेद जो आख्यायिका होती है उससे कथाएं भिन्न है। कथा में क्या है?
काल्पनिक जगत का वर्णन है। कथा में हमें काल्पनिक जगत का वर्णन दिखाई देता है। सो आगे हम लोग अभी हमने देखा कि कथ वाक्य प्रबंध है, उसका अंग ऐसा उपसर्ग लगाकर क्षम्यता प्रत्यय लगाकर, उसके आगे स्त्री टाप प्रत्यय लगाकर कथा, यह स्त्रीलिंगी वाचक है इसलिए टाप प्रत्यय लगाया है, कथा ऐसा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। प्रबंध कल्पना ऐसा अमरकोश कर कहते हैं, और उसका प्रबंधेन कल्पना, प्रबंधस्य कल्पना, ऐसा हम लोग उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। काल्पनिक जगत का जब वर्णन आता है उसको कथा कहा जाता है, और आख्यायिका उससे भिन्न है, ये भी हमने इसमें देखा। अभी कथा श्रवण के परिणाम क्या है, इससे क्या होता है? सबसे पहले है मनोरंजन। मनोरंजन क्यों करना है? अभी अगर हम प्राचीन काल में देखें तो दिन भर यज्ञ किए जाते थे, और यज्ञ के अंत में दोपहर के बाद, यज्ञ समाप्ति के बाद में आख्यान या फिर कथाएं कही जाती थी। मतलब श्रम परिहार, श्रम जो है पूरे दिन यज्ञ में किए हुए श्रम जो है उसका परिहार, मनोरंजन के लिए कथा श्रवण की जाती थी। उसके बाद कथाएं हम अक्सर पढ़ते हैं कौतूहल उत्पादन, मतलब कौतूहल उत्पन्न होता है हमारे मन में, आगे क्या हो सकता है, इसके आगे क्या है, इसके बारे में हमें हमारी उत्सुकता बढ़ती है, कुतूहल बढ़ता है। ये भी कथा श्रवण का एक परिणाम है। इसमें घटना वैचित्र्य दिखाई देता है। मतलब क्या है, एक के बाद एक घटनाएं घटती है, और इसमें अलग अलग रूप से ये घटनाएं आती है, विचित्र रूप से आती है, मतलब जो मन को लुभाती है ऐसी पद्धति से ये घटनाएं आती है। कई बार इन घटनाओं से हमें बोध मिलता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध हमें कथा श्रवण से मिलता है। कथा श्रवण के परिणाम इससे भी और कहे जा सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर हमने मनोरंजन, कुतूहल का उत्पादन मतलब कुतूहल उत्पन्न होना, घटना वैचित्र्य, विविध घटनाएं कैसी घटती है इसको देखना, और इसमें से कुछ बोध हम पा सकते हैं। अभी कथा के उद्देश्य क्या है? कई बार जैसे हमने जातक कथा देखी या फिर प्रथमानुयोग की जैन कथाएं, उसके बारे में जो हमने देखा, तो धार्मिक शिक्षण सुलभ रूप से किसी को अगर बताना है, बच्चों को बताना है, या फिर जो नया सीख रहे हैं उनको, विद्यार्थियों को, छात्रों को अगर कोई सिद्धांत समझाना है तो कथा के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार भी कथाओं के माध्यम से किया दिखाई देता है। उसके बाद कथाओं से उपदेश भी मिलता है। अभी जो उपदेश होता है वो अनेक प्रकार का उपदेश हो सकता है, जैसे कि राजाज्ञा, जैसी देव ने आज्ञा दी है ऐसा भी उपदेश हो सकता है। जैसे कि जैसे वेद है, तो वेद में जो कहा गया है वो हमें स्वीकार करना ही है, ऐसे आग्रह पूर्वक वहां पे जो उपदेश होता है वो होता है। एक होता है जिसमें हमारे जो गुरु है उनसे कुछ बताया है, उसका पालन करना, उस उपदेश का पालन करना, मतलब आज्ञा स्वरूप उपदेश का पालन करना। और तीसरा जो होता है कांता सम्मित उपदेश। मतलब क्या है? कांता, इसका अर्थ है प्रिय पत्नी। अगर प्रिय पत्नी आपको कुछ समझाना चाहती है तो वो कैसे समझाएगी? कांता मतलब प्रिय पत्नी, वो आपको सामने बिठाएगी,
अच्छा क्या है बुरा क्या है वो आपको समझाएगी। और उसका जो कथन है वो शर्करा व गुंठित भेषज जैसा होता है। मतलब क्या है, जो भेषज है, जो औषधि है, उसको अगर शक्कर में घुला मिलाकर कहा जाए, दिया जाए, तो रोगी का रोग निकल जाता है। और उसने दवाई ली है ये भी उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रभावी जरूर होता है। तो ये जो उपदेश होता है, कांता संमित उपदेश जो होता है, वो शर्करा अवगुंठित मतलब शक्कर में लपेटे हुए औषध जैसा प्रभावी होता है। तो कथाओं से जो उपदेश हमें प्राप्त होता है वो कांता संमित उपदेश जैसे होता है। मतलब हमें उपदेश प्राप्त हुआ ये भी हमें नहीं पता चलता है, लेकिन हमारे मन पर वो संस्कार हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। ये जो कथाएं होती है कभी कभी स्वानुभूत प्रसंग का वर्णन भी होती है। मतलब किसी की आप बीती भी इसमें कही जाती है। किसी के ऊपर क्या गुजरी है उसका भी कथन कथाओं के द्वारा हो सकता है। अभी तक हमने देखा कि कथा की व्युत्पत्ति क्या है, उसमें काल्पनिक जगत का वर्णन है। फिर कथा के परिणाम क्या है वो हमने देखा, मनोरंजन, कुतूहल का उत्पन्न होना, घटना वैचित्र कैसे दिखाई देता है ये समझना, और बोध करना, ये भी उसमें से हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद हमने देखा कि कथाओं का उद्देश्य होता है कि धार्मिक शिक्षण, सिद्धांतों का प्रचार और उपदेश। ये जो उपदेश होता है वो कांता संमित उपदेश जैसा होता है, और जिसमें शर्करा युक्त अगर दवाई होती है तो अपने आप वो पेट में चली जाती है और रोग नष्ट होता है, वैसे ही ये जो उपदेश है अपने आप आत्मसात हो जाता है। और हमने देखा कि जो स्वानुभूत प्रसंग है उसको उसका भी वर्णन कथाओं में आता है। आगे हम देखते हैं कि कथा का उपयोजन और प्रसार कैसे किया गया। अगर किसी को कुछ उपदेश देना है तो वो छल स्वरूप नीतिपरक कथाएं बताकर नीति सिखाई जा सकती है। कथाओं का उपयोजन इस प्रकार से होता है। इसका उदाहरण क्या है, नीतिपरक कथाएं हैं पंचतंत्र। हमेशा मैं पंचतंत्र के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि वो नीतिपरक कथाएं हैं। उसमें विष्णु शर्मा नामक पंडित ने 3 राजपुत्रों को राजतंत्र सिखाया है, और राजतंत्र सिखाते सिखाते उनको नीति भी सिखाई है, राजनीति भी सिखाई है और सामान्य व्यवहार नीति भी सिखाई है। वो बालक, इसका मतलब यहाँ है कि बिगिनर्स, छात्र, अध्येत्रु। उनके लिए नीति छलपूर्वक सिखाना, मतलब उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम नीति सीख रहे हैं, लेकिन वो सीख जाते हैं। इसके साथ ही व्यावहारिक आचरण कैसे किया जाता है, मतलब कैसे आचरण करना चाहिए, किसी के साथ कैसे बात करनी चाहिए, किसी के साथ कैसे कैसे बोलना नहीं चाहिए, विद्या का क्या लाभ है, ऐसे सब चीजें व्यावहारिक आचरण के लिए कथाओं के माध्यम से हमें बताई जाती है। इससे क्या होता है, योग्य क्या है और अयोग्य क्या है इसकी हमें परख मिलती है। इसे समझने का आसान तरीका मतलब कथाओं का अध्ययन करना। अभी जो कथा साहित्य है उसमें मैंने बोला कि पंचतंत्र, इसमें क्या है, श्रृंखलात्मक कथाएं हैं। ये जो क्या है, श्रृंखलात्मक कथाएं जो है वो बॉक्स इन बॉक्स, मतलब पेटिका में पेटिका, एक कथा से दूसरी कथा की शुरुआत। जैसे रशियन गुड़िया होती है, मात्रोश्का कहते हैं उसको, मात्रोश्का मतलब एक गुड़िया निकाली तो उसके अंदर दूसरी गुड़िया होती है।
तो ऐसी कथाएं जो पंचतंत्र में दिखाई देती है, उन कथाओं के बीच यात्रियों द्वारा या व्यापारियों द्वारा अलग अलग देशों तक पहुंच गए थे। और उसी से प्राय हम कह सकते हैं कि अरेबियन नाइट्स जैसी कथाएं अन्य देशों में प्रचलित हुई दिखाई देती है। अभी कथा के क्या अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं? जी हाँ, कथा के दो प्रकार है। एक है निहित कथा और दूसरी है कल्पित कथा। निहित कथा जो होती है उसमें उपदेशात्मक कथाएं आती है, और जो कल्पित कथा है उसमें अद्भुत कथाएं आती है। मतलब जो हमें प्रायः हमारे जीवन में आजू बाजू दिखाई नहीं देती है, वो अद्भुत कथाएं कल्पित कथा में आती है। निहित कथा का उदाहरण हम कह सकते हैं पंचतंत्र है, या फिर शुक सप्तति ही है। इनमें भी नीति कथाएं कही गई है। कल्पित कथा मतलब अद्भुत कथा, जो हमने प्रायः कहीं नहीं देखी है, ऐसी बातें सुनना ये अद्भुत कथा में आता है। जैसे सिंहासन बत्तीसी या फिर सिंहासन त्रिंशिका, ये जो है ये अद्भुत कथा में आती है। सो आगे हम देखते हैं कि कथा और आख्यायिका। पहले मैंने जब आपको बोला कि आपटे कोश में लिखा है कि जो आख्यायिका नहीं होती है वो कथा होती है, तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि क्या कथा है और क्या आख्यायिका है, उसमें क्या भेद है, क्या साम्य है, क्या समानता है, ये देखना है। सो प्रबंध कल्पनाम स्तोक सत्याम प्राज्ञाः कथां विदुः परंपराश्रया या स्यात् सा मता आख्यायिका बुधैः। अमर कोश की टीका जो कोलाहलाचार्य ने लिखी है, उसमें यह उद्धरण आता है। तो इसमें क्या लिखा है? प्रबंध कल्पना स्तोक सत्या, मतलब जिसमें थोड़ी ही सच्चाई होती है, ना के बराबर, उसको कथा कहा जाता है। लेकिन आख्यायिका में सत्य कथन थोड़ा ज्यादा होता है और परंपरा के बारे में कुछ बताता है। मतलब किसी के आप बीती जीवन की कहानी आख्यायिका में होती है। मतलब इतिहास में जो है उसके बारे में कथा स्वरूप जो सत्य कथन होता है उसको आख्यायिका कह सकते हैं। तो कथा मतलब क्या है? किंचित सत्य और कल्पना ज्यादा होती है। आख्यायिका क्या है? कथा समान तो है, लेकिन उसमें परंपरा का आश्रय लिया जाता है। राजा का या कवि का वंश क्या है उसके बारे में कीर्तन किया जाता है, मतलब स्तुति की जाती है। आख्यायिका में राजा या कवि के बारे में उसके स्तुति स्वरूप उसके वंश का कीर्तन किया जाता है, स्तुति की जाती है। सो ये कथा और आख्यायिका का भेद है। प्रबंध कल्पनाम स्तोक सत्याम कथाम प्राज्ञाः विदुः, मतलब विद्वान लोगों ने कथा किसको कहा है? प्रबंध कल्पना को कथा कहा है। स्तोक सत्या मतलब जिसमें थोड़ी ही सच्चाई होती है उसको कथा कहा गया है। विदुः मतलब कहा गया है। और आख्यायिका किसे कहा है? बुधई ही, मतलब विद्वान लोगों ने आख्यायिका किसको कहा है? परंपराश्रया, परंपरा का आश्रय लेने वाली। मतलब क्या परंपरा बताते हैं? राजा की परंपरा बताते हैं, कवि की परंपरा बताते हैं, उसका वंश वर्णन करते हैं, उसका गुण वर्णन करते हैं। उसमें उसको विद्वत जनों ने आख्यायिका कहा है। सो हमने देखा कथा और आख्यायिका, इसमें क्या अंतर है। साहित्य दर्पणकार क्या कहते हैं? आख्यायिका कथावत् स्यात्, कवेः वंशानुकीर्तनम्, तस्याम् अन्य कवीनां च
वृत्तम पद्यम क्वचित क्वचित कथांशानां व्यवच्छेद आश्वासः इति कथ्यते। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने ये कहा है। सो जो आख्यायिका कथावत स्यात्, मतलब आख्यायिका जो होती है वो कथा के समान होती है। इसमें कवि के वंश का कीर्तन होता है, प्रशंसा होती है, वर्णन होता है। उसी में अन्य कवि नाम च वृत्तम, अन्य कवियों का भी वृत्तांत मतलब वहां कहा जाता है। मैं आपके प्रश्न अंतिम 5-10 मिनट में ले लूंगी। आपने हाथ ऊपर किए हैं, मैं देख पा रही हूँ। अंतिम 5-10 मिनट में आपके प्रश्न लिए जाएंगे। कथांश का जो भाग होता है, विभाग होता है, उसको आश्वास कहा जाता है। मतलब जो आख्यायिका होती है उसमें जो कथा विभजन किया जाता है उसको आश्वास किया जाता है, आश्वास कहा जाता है। जैसे प्रकरण है उसका नाम आश्वास होता है, लेकिन वैसे कथाओं में नहीं होता है, ये सिर्फ आख्यायिकाओं में होता है। सो अगर हम एक साथ देखना चाहेंगे तो कथा ये कल्पित होती है, आख्यायिका इतिहास प्रसिद्ध होती है। कथा में विषय विभाजन का जो नाम है उसका कुछ कुछ नाम ही नहीं दिया जाता है, उसका अभाव होता है। लेकिन आख्यायिका में विषय विभाजन का नाम होता है आश्वास। कथा में आगे क्या होने वाला है, भावी घटना का सूचन जो होता है उसका अभाव होता है, बल्कि आख्यायिका में आगे जो घटनाएं हैं उसका सूचन कहीं ना कहीं दिया जाता है। कथाएं जो होती है किंचित सत्य होती है, लेकिन आख्यायिका परंपरा आश्रित है, मतलब सत्य कथन अधिक होता है। कथाओं में कवि के वंश का वर्णन कुछ भी नहीं आता है, बल्कि आख्यायिका में कवि वंश वर्णन दिखाई देता है। अभी उसके उदाहरण क्या है? कथा का उदाहरण है कादंबरी जो बाण लिखित है, और आख्यायिका का उदाहरण है हर्षचरितम जो बाण लिखित ही है। मतलब कवि बाण ने दो रचनाएं की, एक है कादंबरी और एक है हर्षचरित, और उसको आगे रखकर कथा और आख्यायिका में ये भेद किया गया है। सो हमने देखा कि कथा और आख्यायिका में भेद है। आख्यायिका में सत्य ज्यादा होते हैं, सत्य कथन का प्रमाण ज्यादा है, तो कथाओं में अल्प सत्य होता है। सो मैं अभी आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, वेताल पंचविंशति क्या है? कथा है, आख्यायिका है, उपदेश कथा है, या फिर अद्भुत कथा है? और मैं अभी आपके प्रश्न लेती हूँ। तो हम्म, हाथ ऊपर किए हैं किसने? मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। हम्म, आप फिर से हाथ ऊपर कर सकते हैं प्लीज। हाँ, बोलिए। आपको अनम्यूट कीजिए खुद को और बोलिए। मैंने अनम्यूट किया है। उपदेश कथा और अद्भुत कथा। हम्म, क्या उपदेश कथा और अद्भुत कथा है वेताल पंचविंशति? हाँ, लेकिन निहित कथा जो होती है वो उपदेश कथा है। वेताल पंचविंशति में कोई उपदेश दिया गया है या ये अद्भुत कथाएं हैं? अद्भुत कथा। हाँ, तो या तो वो अद्भुत कथा हो सकती है या उपदेश कथा है। मतलब अद्भुत कथा से भी हमें कुछ ना कुछ उपदेश मिलता है, लेकिन उद्देश्य जो है उसका वो उपदेश कथन नहीं है। समझ में आया हरिणी हाँ, जी? और किसी को कुछ प्रश्न है? आप हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। बोलिए। हाँ जी। भगिनी, हम लोगों का वो पीडीएफ क्या मिल सकते है इस बुक का? हाँ हाँ, बुक का नहीं, हम बुक का हम लोग देंगे, लेकिन अभी
थोड़ी देर के बाद, थोड़ी क्लासेस के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन ये जो मैं शेयर कर रही हूँ वो सबका पीडीएफ हाँ आपको मिल जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो बुक का है अगर वो होता तो हम लोग प्रिंट कर लेते, तो अच्छा होता इसलिए। नहीं, अभी तो कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कथा में जो कहा गया है वो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, वो आप वहीं पे पढ़ सकती है। अच्छा अच्छा ठीक है। बाद में उपलब्ध होगा आपको, चिंता मत करना। ठीक है ठीक है ठीक, धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न है? हरिणी, आपको प्रश्न है? नहीं। ओके। और किसी को कुछ प्रश्न? You can raise your hands. Any doubts, we can allow you to talk. यस देविका जी, बोलिए। Ram Ram ji, can राम you राम। just explain once in English what is Akyaika, Upadesha Katha and Adbhut Katha? Okay. So to say in English, I will once again go to the slide. Okay. Now you can see this slide. In this slide, Katha means which is not a real. Facts are not there in Katha. Whereas in Akhyayika, facts are in major portion. The history of someone, of a king or a poet is told in Akhyayika. Now the division of Katha is not named by any particular name. But whereas the Akhyayika division is named as Ashvasa. In Akhyayika, we can see there is some hint is given about what is happening next. But that type of hint is not given in Katha. Akhyayika mein, in Akhyayika, we can see there is some type of parampara. Parampara means whatever happened in the earlier stage. That is shown in the Akhyayika. But in Katha, that type of explanation is not there. In Akhyayika, lot of verses or sentences or a major portion is allotted to tell about the poet or king. Whereas in Katha, no such explanation is given. The example of Katha is Kadambari. An example of Akhyayika is Harshacharitam. Both are written by Banu. I think it is pretty clear, right, Bhagini? Dhanyavada Bani. Dhanyawada. Anything else? Any other questions? Aditi. Yes, Aditi? Yes, Aditi, you can talk now. I can't listen. I can't hear you. Aditi, आप सुनाई नहीं देता है आप जो कह रही है वो। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, बोलिए। सॉरी, मुझे ये जानना था कि हर कथा का एक मॉरल होना जरूरी है या इट इज इम्प्लाइड कि मतलब कथा मतलब समथिंग दैट मतलब जिसमें मॉरल इम्प्लाइड होता है, लाइक मॉरल ऑफ द सभी स्टोरी कहते हैं ना ऐसे। मॉरल ऑफ द स्टोरी हम कहते हैं तो वो नीति कथाओं में ज्यादा होता है। अद्भुत कथाओं में वो हिडन होता है। कभी कभी कहीं कहीं हमें कोई गुण जो है वो आत्मसात कर सकते हैं हम उससे, तो वो निहित होता है, छुपा हुआ होता है उसमें। लेकिन नीति कथाओं में जो है उसका कोई तो मोरल होता ही है, मोरल ऑफ द स्टोरी होता ही है। ओके, मतलब और आख्या ये का में भी आख्यायिका, मतलब आख्यायिका में भी कुछ मतलब कुछ सीख होता है उसमें, इवन इफ इट इज उसमें तो अभी हर्षचरित अब अगर आप देखेंगे, राजा हर्ष के बारे में, उसने शासन कैसे किया, उसने कौन से प्रांत प्राप्त किए, इस सब के बारे में उसमें वर्णन आता है। तो वो सत्य कथन ही होता है प्रायः। तो इम्प्लाइड उसमें से कुछ लर्निंग्स होती हैं, तो मतलब ऐसा हाँ, अगर मॉरल। सुभाषित, हाँ उसमें सुभाषित है तो कुछ अब हमें सीखने को मिलता है उसमें से। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम।
हाँ, बालकृष्ण जी पूछिए। बालकृष्ण HV। Hello. हाँ, बोलिए। Good evening, madam. गुड इवनिंग। Madam, first of all, I feel every story, whether you classify it as Niti Katha or whatever, has some message or Niti in it, Yes. provided So, you look at it in a yes. proper way. It is my Yes. opinion only. Yes, you are absolutely right. Nothing is wrong in your saying. Only thing is that in Niti Katha, the nitis are more, the morals are more. Whereas in Katha, Adbhut Katha, it's not in that amount. उतने प्रचुर Okay. मात्रा में नहीं होती है, इतना ही कहना है। Okay, madam. The second thing is, हम्म, under which classification can we put our epic stories like Ramayana and महाकाव्य, Mahabharata? प्राचीन महाकाव्य, So they महाकाव्य are not. Can we not call them as a Niti Katha, because no, there is lot of some episodes from Mahabharata can be called as Niti Katha. Got it? Okay, thank you. और किसी को कुछ प्रश्न है? अगर आपके प्रश्न पूछ के हो गए हैं तो आप हाथ नीचे कर सकते हैं, सो दैट यस उपगना यू कैन आस्क मी। हेलो हाँ, पूछिए। मैम, जैसे मुझे थोड़ा बहुत पता है कि पंचतंत्र में हम्म पद्य में भी होता है, कुछ गद्य फॉर्म में भी होता है। हम्म तो ये कथा और आख्यायिका में इस तरह का कोई भेद है कि कोई एक पद्य में ही होती है या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कथा, मैंने कहा कथा सरित सागर है, वो तो पूरी श्लोक स्वरूप है। पंचतंत्र है, वो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है, लेकिन उसमें एक ही कथा नहीं है। आख्यायिका में उसका जो अभी हर्षचरित है, हर्ष यही उसका नायक है। उसकी प्रस्तावना में कवि या और कवियों का वर्णन आएगा, लेकिन मेन कथा वस्तु जो है वो हर्ष है। ओके। और वो पद्य में भी होता है और गद्य में भी होता है? हो सकता है। अरुण कुमार जी। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Akhyatam in Sanskrit means famous. Akhyayika, how that word is derived to mean katha, madam? आख्यायिका डजंट मीन कथा। ख्या मीन्स टू टेल। आख्यायिका मतलब जो पहले है, इतिहास में प्रसिद्ध है, उसका कथन करना मतलब आख्यायिका है। Okay. So Shivalila Navam comes in which category? Man, this is Padya Kavyam or? वो क्या है आप मुझे बताइए तो हम और एक मैं बात कहना चाहूंगी, जो जिससे ही मैंने शुरुआत की है। ये जो बाइफरकेशन किया है, ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। उसके लक्षण हमें यहाँ वहां दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये विभाजन करके फिर उसके लक्षणों के बरहुकुम उसको मद्देनजर रखते हुए फिर साहित्य की रचना हुई है, ऐसा नहीं है। साहित्य की रचना पहले हुई है और उसके बाद में उसको विभाजन किया गया है। यह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी शिवलीलार्णवम, इसकी कथा वस्तु क्या है ये देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, फिर मैं बता सकती हूँ। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। आपके जो बाकी प्रश्न हैं आप ईमेल से भी पूछ सकते हैं। और हमारे आज के सेशन का अंत करने के पहले मैं कुछ समाप्ति करने के पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी। जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, हर सेशन के बाद वहां आपको 5 या 10 प्रश्न पोल के स्वरूप में आएंगे।
या फिर और किसी स्वरूप में आएंगे, तो उनको सिर्फ एमसीक्यू स्टाइल है, उसको सिर्फ क्लिक करना है और आपका अध्ययन भी हो जाएगा। अभी आज हमने जो सीखा है, जो सुना है, उसके ऊपर से एक 5 या 10 प्रश्न आपको उसमें भेज दिए जाएंगे क्लास के उपरांत, उसका आप आंसर दे सकते हैं। जी, मनीष मिश्रा जी प्रश्न पूछिए। मनीष मिश्रा। नमो नमः आदि। नमो नमः। मैं कह रहा था कि हमारी जो अगली कक्षाएं होंगी उनकी रूपरेखा के बारे में कुछ कहेंगी आप? इसके आगे हम ये जो वेताल पंचविंशति है, वो कहाँ से ली गई है, उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, हम जी। लोग जो संहिता पढ़ने वाले हैं वो किसने लिखी है, इसके बारे में पता करके जो कथाएं हैं उसका हर एक शब्द का अध्ययन यहाँ होगा, उसका मीनिंग, सिंपल व्याकरण बताया जाएगा। यहाँ स्क्रीन शेयर करके वो कथाएं और आपको प्रश्न उत्तर के स्वरूप में वो पूछी जाएगी। जी, धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न है? मैम अदिति, जस्ट आपके एक क्वेश्चन आया था कि महाभारत और रामायण के किस बाइफर्केशन में आते हैं। हाँ, और आपने बोला कि कथा है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, मैंने बोला महाकाव्य है और उसमें जो छोटे छोटे एपिसोड्स है उसमें कथा दिखती है हमें कहाँ का। अच्छा, तो महाकाव्य है। अच्छा, तो ये आख्यायिका में नहीं आ सकते क्योंकि उसमें कृष्ण का वर्णन है और राम का तो वर्णन वो है। एक एपिसोड है ना, वो पूरा महाभारत नहीं है वो। अच्छा, तो इट इज अ मिक्स ऑफ काव्य एंड आख्यायिका, ऐसे कह सकते हैं क्या? हाँ, वो काव्य में कुछ कथाएं या आख्यायिकाएं आएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। यस, अदिति कुछ प्रश्न है आपको? देविका? हाँ, How to join the WhatsApp group, ma'am? अभी आपको चैट में लिंक भेजी गई है या फिर आपके डेस्कटॉप कोर्स पेज पर भी होगी। No, just now we have shared in chat. Once again, if so you want, can I you will share it once again. please reshare it? Yes. And even through mail, we have sent the WhatsApp link. Please check your mail once. विश्वदीप जी, आप कुछ प्रश्न है आपको? विश्वदीप? व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में ही पूछना था। हाँ, ठीक है, वो अभी चैट में आया है, वो लिंक आप देख लीजिए, वहां से व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। स्नेहल? स्नेहल, आपको प्रश्न है? अनम्यूट कीजिए और बोलिए। बाकी प्रश्न आप पूछ सकते हैं मेल द्वारा। हाँ हाँ, स्नेहल वो बोलिए। हाँ वो ज्वाइन नहीं हो रहा है। क्या नहीं ज्वाइन हो ज्वाइन रहा है? करके देख रही हूँ, लेकिन No, व्हाट्सएप you ग्रुप। just see, you just check now, Bagini. Now I have shared that one, that link. Earlier it was a app ओके link. It is. ओके ओके, हाँ Just हाँ now I हाँ, have आ गई आ गई, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, आ गई। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद। ओके ओके, सो अभी हम समाप्त करते हैं। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमो नमः। नमो धन्यवाद नमः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवाद। थैंक यू। मिलामः। मिलामः।